Hello everyone, this is Rashmi. Welcome to my channel. There are the two important topic of theory of computation that I am going to discuss in this video. First is identification of grammar. Whether the given grammar is regular, it is context free, it is context sensitive. Whenever we find this question, we find difficult to solve them. So how you can solve this question easily, you can learn by watching this video, because in this video I have provided the solution of previous year question. मैंने previous year question from gate and net से pick किया और उन सब का solution आपको provide कराया. So it is going to be 2 hours marathon, जिसमें हमने सिर्फ PYQ सॉल्व किए हुए हैं, MCQ सॉल्व किए हुए हैं, दैट इज रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रामर. सेकेंड टॉपिक जो मैंने यहाँ पिक किया है, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. whether the regular is closed under the particular property, whether a CFL is closed under particular property or not. So इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं, जैसे CFL is closed under the complementation and intersection or not, या regular difference with CFL, what it will be, ये CFL होगा या regular होगा. So how to decide this problem? So such kind of question we have discussed in this video, and definitely it is the 2 hours marathon. So complete करिए, सेशन को लाइक करिए, एंड जो भी आंसर क्वेश्चन मैंने यहाँ पूछे हैं पहले उनको ट्राई करिए सॉल्व करने का, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, एंड देन see the further video for the solution. So it will also help you whether you are understanding the concept or not. This is the class recording जो मैंने अपने प्लस स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाया हुआ है. So that's why एक कंप्लीटेड रिकॉर्डेड वीडियो है. बट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स. If you find this video helpful, definitely you have to like it and share with your friends. So watch this video and let me know your experience into the comment box. Thank you. Okay, so now see next question start करते हैं. Here we have the next questions. Try to solve this one. A language is given. The correct answer from this. Which of the following are not regular? Which of the following are not regular? A and C only, A B only, A B C, and B and C. क्या आंसर होगा? यस, ठीक है. यहाँ पर आप देखें तो तीनों ही जो लैंग्वेज है ना, तीनों ही लैंग्वेज क्या है? आइडेंटिफिकेशन सम डिफिकल्टी. मैम हम ट्राई करते हैं अभी न्यूमेरिकल्स को, फिर भी जो डिफिकल्टी होगी आप प्लीज जरूर पूछिएगा. तो यहाँ पर देखिए पहला चीज, here we have 0 1 पावर n and 0 पावर k. क्या ये रेगुलर है? रेगुलर की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेगुलर की प्रॉपर्टी होती है that it only understand the ordering, that A is followed by B is okay. Single A followed by double B, या B starting with B and ending with A.
such kind of ordering we can easily design in the regular language, but whenever there is comparison, that number of a should be equal to number of b, or number of a should be thrice of number of b. So in that case we cannot do that comparison, है ना. तो जब भी इस टाइप का कंपैरिजन है वो CFL है या CSL है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कंपैरिजन. सो लाइक यू कैन सी कि 0 1 पावर n एंड 0 पावर k, सी दिस सेक्शन, क्या यहाँ कंपैरिजन है. सो n इज ग्रेटर देन k, यस कंपैरिजन इज देयर, मीनिंग इज दैट इट कैन नॉट बी रेगुलर, ये रेगुलर नहीं है. नाउ c पावर n, b पावर k, a पावर n plus k, again comparison is required. So n is greater than equal to 0, k is greater than equal to 0, but what we want, ठीक है. अच्छा, इसको एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है. नाउ व्हाट वी वांट कि c पावर n एंड b पावर k, बोथ ऑफ देम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ a, है ना. c एंड b बोथ शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ a. अगेन कंपैरिजन नॉट रेगुलर, नॉट रेगुलर. नाउ 0 and 1k, ऐसे तो दिख रहा है n इज नॉट इक्वल टू k, बट यू कैन सी दिस इज अगेन अ कंपैरिजन ऑपरेटर ना, ये भी तो कंपैरिजन ऑपरेटर है. सिंस इट इज कंपैरिजन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट रेगुलर, ये रेगुलर नहीं होगी, है ना, ये रेगुलर नहीं है. नाउ सी अगेन वी हैव वन मोर क्वेश्चन. 0 पावर n, 1 पावर n, 0 पावर m, ठीक है. 0 पावर m, 1 m, 0 m. विच ऑफ द फॉलोइंग, L3 इज L1 इंटरसेक्शन L2 है. L1 and L2 are context free, but L3 is not context free. L1 and L2 are not context free, but L3 is context free. L1 is a subset of L3. क्या आंसर होगा यहाँ पर? ए एंड बी, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए जो आपका स्टेटमेंट है, फर्स्ट 0 पावर n, 1 पावर n, है ना. 0 and 1 शुड बी इक्वल टू, देन 0 पावर m. यहाँ कंपैरिजन की जरूरत नहीं, वी जस्ट रिक्वायर द स्किप ऑपरेशन. सो यस, वी कैन डू दिस कंपैरिजन विद द सिंगल स्टैक. सो दैट्स व्हाई इट इज CFL. ये आपका क्या होगा? CFL. ना 0 पावर n, अगेन 1 पावर m, 0 पावर m. कंपैरिजन इज रिक्वायर्ड हेयर, यहाँ कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट है, तो ओनली वन कंपैरिजन CFL है. नाउ 0 पावर n, 1 पावर n एंड 0 पावर n, so 2 times n comparison is required, so it cannot be CFL. ये क्या हो जाएगी? CSL, है ना. ये क्या बनेगी? CSL. तो इन्होंने कहा L3 क्या है? L1 और L2 का इंटरसेक्शन है. तो यदि मैं लैंग्वेज देख के बात करूं तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ, बट यदि हम बात करें कि इंटरसेक्शन ऑफ CFL विद CFL, इट विल बी CSL. ए CSL होता है, तो हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ CFL मे और मे नॉट बी CFL होता है. तो हम इसको कंक्लूड क्या कर देते हैं? इट इज हायर क्लास, दैट इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज. और CSL क्या है? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है. L3 क्या है? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है. तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा.
Now L1 and L2 are context free, but L3 is not context free. Context free true है. L1 obviously यदि एक true है तो एक false होगा. Now L1 is a subset of L3. तो L1 is a subset of L3. यदि आप देखें CFL is a subset of CSL की बात कर रहे हैं तो सही है, बट ऐसा आप नहीं बोल सकते कि L1 की ग्रामर क्या है. L1 बोल रहा है 0 पावर n, 1 पावर n, 0 पावर m, such that n is greater than equal to 1 and m is greater than equal to 1. Now यहाँ L3 क्या है, ये L1 है. L3 क्या है, it is 0 power n, 1 power n and 0 power n, such that n is greater than equal to 1. So now you can see ना, a 0 और a वाला 0 है ना, these two variables, यदि मैं n की बात भी करूं, so these are the different language and these n are independent. ये independent है, we cannot find any relation between these language, है ना. तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि L1 is a subset of L3 because 0 power m 0 पावर m, अब m की वैल्यू भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया है ना, एंड n भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया है. सो इन दैट केस भाई एक तरीके से इक्विवेलेंस फिर भी हम ये रिलेशन नहीं बता सकते बिटवीन L1 एंड L3 बिकॉज बोथ वेरिएबल n एंड m आर इंडिपेंडेंट. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन A and B आर करेक्ट, है ना. A and B आर करेक्ट. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जून, ठीक है, 2020. लेट्स कंसीडर L इक्वल टू L1 इंटरसेक्शन L2 है. सो लैंग्वेज L क्या होगी, कैन यू आइडेंटिफाई लैंग्वेज L क्या होगी. ओके, बाकी सभी क्या आंसर होगा. कॉन्टेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर, रिकर्सिवली इनुमरेबल बट नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री, रेगुलर एंड नॉट रिकर्सिव. तो सबसे पहले L1 एंड L2 का टाइप फाइंड आउट कर लीजिए, है ना. L1 L2 का टाइप फाइंड आउट कर लीजिए, देन यू कैन आंसर. सो CFL, सॉरी L1 क्या है, L1 क्या है, व्हाट इज L1. भावना मैम, साक्षी मैम, शालिनी मैम, ठीक है. व्हाट इज L1. सो यू कैन सी, देखिए अब अभी क्या है, कैन आई यूज सिंगल स्टैक फॉर दिस वन, कैन आई यूज सिंगल स्टैक फॉर द L1. सी द कॉन्सेप्ट, ठीक है. ऑन 0 एंड 1 का इनका कंपैरिजन करना है. 0 पावर m, 1 पावर m, 2 is nothing, we don't have to compare it with any number. Again we have 0 power n, 1 power n. So देखिए होगा कैसे. If I have single stack, first of all 0 जब मैं रीड करूंगी, suppose it is 0 power 2, 1 power 2 and it is 0 power 3, 1 power 3 and 2 will be there. So what I will do, 0 push करिए एंड 1 पर पॉप कर लीजिए. स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी है, ठीक है. स्टैक एम्प्टी हो गया, आपने पॉप कर लिया. अब आप कहाँ पहुंच गए, 2 पर. अब आप कहाँ है, 2. परफॉर्म स्किप ऑपरेशन ऑन 2 क्योंकि उसका कंपैरिजन नहीं करना है. सो हियर वी कैन परफॉर्म स्किप ऑन 2, ठीक है. 2 पर स्किप होगा, 0 पर पुश हुआ, 1 पर पॉप हुआ एंड 2 पर स्किप हुआ. अगेन 0 push 0 and again on 1 pop 0, again on 1 pop 0, again on 1 pop 0. So again by using single stack this comparison is
performed. That's why this is CFL. ये CFL है, ये CFL है. अच्छा, शॉर्टकट ये कहता है कि भाई देखो, अब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि हम हर बार स्टैक के बारे में ही सोचेंगे, है ना. हमको सिर्फ ये चीज समझना है कि कंपैरिजन मैं इन दो का कर दूंगी, उसके बाद इन दो का कर दूंगी, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम एक आइटम को पुश करते हैं, एक पर पॉप करते हैं, पुश करते हैं, पॉप करते हैं. तो यस, ये दो कंपैरिजन पॉसिबल है. सिंस दीज आर पॉसिबल, तो हम कहेंगे ये CFL है, ये CFL है. नाउ 0 पावर m, 1 पावर n, 2 पावर k, all three वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट. सो ये बना रेगुलर. अब आंसर देख लो कि इंटरसेक्शन L क्या है, L है इंटरसेक्शन ऑफ CFL विद रेगुलर. सो CFL का इंटरसेक्शन विद रेगुलर CFL होता है. तो कॉन्टेक्स्ट फ्री तो होगी बट रेगुलर नहीं होगी. कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा बट रेगुलर नहीं होगा. तो आई होप आपने ये चार्ट प्रिपेयर कर लिया है. फिर भी एक बार समराइज कर देते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर ऑल द प्रॉपर्टी. रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर यूनियन. Regular is closed under intersection. It is closed under complement, concatenation, clean star, homomorphism, epsilon homomorphism, substitution, inverse homomorphism, reverse, and intersection of two languages. Now see, DCFL. DCFL is only closed under complementation. देखो, CFL is not closed under complementation, but DCFL is closed under the complementation. DCFL is closed under the complementation. DCFL is closed under the inverse homomorphism. DCFL is closed under the inverse homomorphism, and it is also closed under the intersection with regular language. मतलब DCFL का यदि आप इंटरसेक्शन विद रेगुलर करोगे तो आपको आपको DCFL ही मिलेगा. ये बोलना चाह रहे हैं, इंटरसेक्शन विद रेगुलर. तो याद क्या किया, याद हो गया. DCFL is closed under the complementation. It is inverse homomorphism and intersection with the regular language. Now third देखिए, अब CFL का क्या याद रखना है. CFL के बारे में याद रखिए कि it is not closed under complementation and intersection. That's it. CFL is not closed under the intersection and complementation. For the rest, it is closed. CSL, it is not closed. Only one property. CSL, context sensitive. It is not closed under homomorphism. DCFL is not closed under the inverse homomorphism, but CSL, it is not closed under the homomorphism. Got it? कैसे चार्ट याद हो रहा है. फिर रिकर्सिव इज नॉट क्लोज अंडर होमोमॉर्फिज्म एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एप्सिलॉन फ्री. एंड फाइनली रिकर्सिवली इनुमरेबल, इट इज नॉट क्लोज अंडर द कॉम्प्लीमेंट. तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें. ठीक है, कि वी हैव DCFL is the only language that is not closed under the union. दूसरे तरीके से भी स्टडी करके आपको बता रही हूँ. DCFL is the only language that is closed not under the union. DCFL and CFL both are not closed under the intersection. Rest are closed. ठीक है. Complementation, CFL and recursively enumerable. ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा. कॉम्प्लीमेंटेशन में कौन क्लोज नहीं है, CFL तो हमें याद है, साथ में रिकर्सिवली इनुमरेबल भी नहीं है क्लोज. कॉन्केटिनेशन के लिए ओनली DCFL, क्लीन स्टार ओनली DCFL, होमोमॉर्फिज्म DCFL, CSL and recursive, epsilon homomorphism only DCFL, substitution DCFL and recursive, and reverse only DCFL. Rest are closed under this. ठीक है, तो याद रहेगा, है ना. ये आप अपने स्टडी नोट्स में भी डाल लीजिए, याद रहेगा, है ना सभी को. रिकर्सिवली इनुमरेबल ओनली complementation. Recursive, homomorphism and substitution. CSL only homomorphism. CFL intersection and
complementation. DCSF, DCFL complementation, it is closed under, है ना, it is closed under inverse homomorphism and intersection. Yes, चलिए इस पर ही बेस्ड सारे क्वेश्चन होते हैं आपके, है ना. क्लोजर प्रॉपर्टी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे और भी न्यूमेरिकल. सो हेयर वी हैव, हाँ ये भी प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट कि रेगुलर का इंटरसेक्शन विद एनी अदर लैंग्वेज, एनी अदर होगा. लाइक इफ यू आर डूइंग रेगुलर इंटरसेक्शन with CFL, what you will get? You will get CFL. Regular intersection with suppose recursively enumerable, so you will get recursively enumerable. Same behavior for the inter union, है ना. बट थोड़ा सा यहाँ समझने की जरूरत है. देखिए रेगुलर लैंग्वेज डिफरेंस विद DCFL, ठीक है. डिफरेंस विद DCFL क्या देगा? DCFL देगा. डिफरेंस विद DCFL ही देगा, क्योंकि DCFL इज क्लोज्ड अंडर द कॉम्प्लीमेंट, है ना. DCFL इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट. बट यदि यही प्रॉपर्टी आपसे बोला जाए कि रेगुलर डिफरेंस विद CFL, तो क्या ये CFL होगा? तो आंसर होता है मे और मे नॉट. मे और मे नॉट. वाई? देखो वाई समझो, इसको हम लिखते हैं आर इंटरसेक्शन CFL कॉम्प्लीमेंट. नाउ इंटरसेक्शन CFL कॉम्प्लीमेंट, इसको रीराइट किया. नाउ वी नो दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ CFL मे और मे नॉट बी CFL. दैट्स व्हाई इंटरसेक्शन विद रेगुलर विल बी मे और मे नॉट बी CFL. इट कैन बी CSL. ये CSL हो सकता है, ठीक है. सिमिलरली आर डिफरेंस, अच्छा इसका अपोजिट, यदि आपसे बोला जाए CFL डिफरेंस रेगुलर, यदि आपसे बोला जाए CFL डिफरेंस रेगुलर, तो क्या होगा? तब ये CFL होगा. यस, ये डेफिनेटली CFL होगा. कैसे? CFL इंटरसेक्शन विद रेगुलर का कॉम्प्लीमेंटेशन. रेगुलर का कॉम्प्लीमेंटेशन इज रेगुलर, तो CFL इंटरसेक्शन विद रेगुलर इज CFL. ये करेक्ट है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, है ना. इसी तरीके से रेगुलर डिफरेंस विद रिकर्सिवली इनुमरेबल, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट बी रिकर्सिवली इनुमरेबल. रीजन सेम है, बिकॉज रिकर्सिवली इनुमरेबल इज ऑल्सो नॉट क्लोज्ड अंडर, also not closed under the complementation, so it may or may not be recursively enumerable. It may be unrestricted. Unrestricted है तो फिर कॉम्प्लीमेंट तो डिफरेंस भी अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, ठीक है. तो ये दो स्पेशल केस है. नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. सॉल्व करिए.
4 इज द आंसर। 4 कैसे हो गया? सी बनेगा ना। देखो सबसे पहले आपने बोला रिकर्सिवली इनुमरेबल, पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिकर्सिव, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ओनली रिकर्सिवली इनुमरेबल एंड CFL are not closed under the complementation. Meaning is that complementation of recursive language recursive ही होगा, union with recursively enumerable. Now recursive is a subset of recursively enumerable. तो जब आप union करोगे तो क्या मिलेगा? Recursively enumerable, है ना। अब देखो सेकंड, CFL कॉम्प्लीमेंट ऑफ CFL हम बोलते हैं CSL होता है। यूनियन विद रिकर्सिव ऑब्वियसली क्या मिलेगा? रिकर्सिव। एंड LR का क्लीन क्लोजर, रेगुलर इज क्लोज्ड अंडर ऑल द ऑपरेशन, सो इट इज आल्सो क्लोज्ड अंडर द क्लीन क्लोजर। सो क्लीन क्लोजर ऑफ रेगुलर इज रेगुलर, इंटरसेक्शन विद CFL क्या होगा? CFL होगा। तो ये आपको क्या देगा? ऑप्शन 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ए इज 0 पावर एन 1 पावर एन एंड यस वेरी गुड। ए क्या है? CFL है। नहीं, ए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, दिस इज नॉट रेगुलर। रेगुलर क्यों नहीं है भाई? रेगुलर क्यों नहीं है? ए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है। वाई कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव? देखिए वैल्यू ऑफ एन क्या हो सकती है? वैल्यू ऑफ एन 1 2 3 हो सकती है, बट इफ आई एम टेकिंग 1 देन 0 पावर 1, 1 पावर 1 एंड 2 पावर 1 शुड बी देयर। मतलब नंबर ऑफ 0 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ 1 एंड नंबर ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ 2, या 0 पावर 3, 1 पावर 3 and 2 power 3. So number of 0 is equal to number of 1. Number of 1 should be equal to number of 2. More than one comparison. So it is context sensitive. A context sensitive है। रेगुलर कब होता है? हाँ, इसमें कम, यदि आपको आज कंफ्यूजन हुआ तो वो भी बताती हूँ। यही चीज रेगुलर होगी, मगर कब? 0 पावर n, 1 पावर m, 2 पावर k, ऑल 3 वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट। तीनों इंडिपेंडेंट है ना। यहाँ कंपैरिजन की बात ही नहीं है। तो एक लैंग्वेज बनती है 0 क्लीन क्लोजर, 1 क्लीन क्लोजर, 2 क्लीन क्लोजर। 0 फॉलोड बाय 1, 1 इज फॉलोड बाय 2। सो उस केस में आप इसको रेगुलर बोलते। बट यहाँ तो कंपैरिजन है ना भाई, यहाँ तो कंपैरिजन है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। ये होगा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। नाउ अगेन आइडेंटिफाई दिस।
हाँ, फाइनाइट होता तब आपका ये तब भी आप बोल सकते थे, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ एन इज फाइनाइट, एन इक्वल टू 10 होता, एन इक्वल टू 2 होता, इफ ओनली वन वैल्यू इज देयर, तो आप कहते कि हाँ ये यस, यहाँ आंसर आप क्या बोल रहे हैं, विच वन इज द सी एफ एल। सो ए पावर एम, बी पावर एन, ए पावर एम, ठीक है। तो क्या ये सी एफ एल है? यस, क्या करिए, एक जितने भी टोटल ए है इन द बिगनिंग सभी को पुश करिए, जब बी आता है तो बी और ए पर पॉप परफॉर्म कर दीजिए। सो यस, एन प्लस एम का कंपैरिजन एन प्लस एम से हो जाएगा। सो दिस इज पॉसिबल, ये सी एफ एल है। नाउ 1 and 2 कंपैरिजन, नॉट CFL, इट इज CSL, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली। वेरी गुड। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये तो मैंने एक बार और करवाया अभी 2-3 दिन पहले। क्या ये रेगुलर है? यस, क्या आंसर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलर? सो ये आंसर था, नहीं भाई, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कैसे? देखो, स्ट्रिंग ऑफ इवन नंबर ऑफ ए, यस, हमने ये वाला डीएफए भी डिजाइन किया है ना, आपने डीएफए भी डिजाइन किया है। देखिए, कभी भी रेगुलर आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है या सीएफएल आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। क्यों? रेगुलर भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कैन आई डिजाइन द डीएफए फॉर इट? कैन आई राइट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर इट? इफ आंसर इज यस, not only DFA, if you can design NFA, if you can design epsilon NFA, still जो आपकी लैंग्वेज होगी वो रेगुलर होगी, और यू कैन राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर इट, इट विल बी रेगुलर। एंड इफ यू कैन डिजाइन द पीडीए फॉर एनी ग्रामर, यदि आप पीडीए डिजाइन कर पा रहे हो, ठीक है, इट कुड बी डीपीडीए और एनपीडीए, बट यदि आप डिजाइन कर पा रहे हो, आप सोच पा रहे हो कि मुझे कैन आई परफॉर्म दिस टास्क विद द हेल्प ऑफ स्टैक, तो वो CFL होगी, वो CFL होगी, है ना। तो स्ट्रिंग ऑफ इवन नंबर ऑफ ए, यस, ये आपका रेगुलर है, बट स्ट्रिंग ऑफ एज हुज लेंथ इज अ प्राइम नंबर। अब देखो, ये प्राइम नंबर का कैलकुलेशन ना तो स्टैक से पॉसिबल है और ना ही ये रेगुलर में पॉसिबल है, तो ये दोनों ही नहीं होगी, नॉट रेगुलर नॉट CFL। सेट ऑफ पैलिंड्रोम मेड अप ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो यस, हम पैलिंड्रोम कंपैरिजन नहीं कर सकते, पैलिंड्रोम कंपैरिजन भी पॉसिबल नहीं है, तो इट इज नॉट रेगुलर। A whose length is perfect square, again this calculation is not possible with stack and not possible with regular, so आंसर क्या हो जाएगा? B, C and D। कैलकुलेशन की बात आई,
कैलकुलेशन की बात आई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रेगुलर। सो जो पहली लैंग्वेज है उसका तो ये बना लैंग्वेज, है ना। सेकेंड वन, स्ट्रिंग ऑफ एज whose length is a prime number, we cannot do calculation. ww का रिवर्स, ww का रिवर्स ये CFL का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये CFL का एग्जाम्पल है, दैट वी फॉर दिस वी डिजाइन द NPDA, ठीक है, NPDA से सॉल्व होता है प्रॉब्लम। एंड एन स्क्वायर, है ना, नॉट कैन नॉट बी सॉल्व विथ CFL, कैन नॉट बी सॉल्व विथ CFL। समझ आ रहा है भाई, कॉन्फिडेंस आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब देखो ट्विस्ट कर सकते हैं इसको, मैच द टेबल बना सकते हैं यार। अब देख रहे हो अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन ही मैंने रखे हुए हैं यहाँ पर। अब देखिए क्या आंसर होगा यहाँ पर। सो हियर वी हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए थोड़ी देर पहले मैंने इसको बताया, ये CFL है, WW रिवर्स, है ना, ABB BBA पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम, है ना, एंड पैलिंड्रोम इज द, दिस इज द एग्जांपल ऑफ CFL एंड इट कैन बी सेटिस, इसको हम सॉरी, टू एक्सेप्ट दिस वी डिजाइन द NPDA, हम इसके लिए NPDA डिजाइन करते हैं। व्हाई? बिकॉज यहाँ मुझे पता नहीं है ना कि मुझे कहाँ तक पुश करना है, कहाँ कहाँ से पॉप ऑपरेशन स्टार्ट करना है, आई कैन नॉट डिसाइड, है ना। लाइक जैसे आप देख रहे हो ABB यदि W है एंड W रिवर्स आपको पता है BBA होगा, लेकिन हाउ द मशीन विल डिसाइड कि किस B तक रीड करना है या BAA किस A तक रीड करना है और फिर उसके बाद रिवर्स करना है। तो होता ये है कि हम जो भी पॉसिबल पाथ है उनको हम सेलेक्ट करते जाते हैं, फिर हम रिटर्न आके अगेन स्टार्ट करते हैं। तो ये तो NPDA से वर्किंग होती है, दैट्स वाई ये एग्जांपल है, दैट इज ऑफ CFL। कैन आई से इट इज DCFL एज वेल, क्या ये DCFL है? तो आंसर होगा नहीं, नो। व्हाई? बिकॉज आई कैन नॉट डिसाइड वेयर अप टू व्हेन टू पुश व्हेन टू पॉप, है ना, इसके लिए मुझे एम्बिग्यूटी है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट DCFL। बट सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल कहता है W इज ABB एंड W रिवर्स विल बी BBA, और उन दोनों के बीच में लगा दिया हैश साइन, तो ये स्ट्रिंग क्या बन गई, स्ट्रिंग आपकी बन गई ABB हैश BBA। नाउ अब आपको पता है कि अप टू बी,
है ना। जब तक हैश साइन नहीं आता है तब तक मुझे पुश करना है, तब तक मुझे क्या करना है, पुश करना है। हैश पर क्या करोगे, स्किप परफॉर्म कर दोगे, हैश पर क्या करोगे, स्किप ऑपरेशन परफॉर्म कर देना, और उसके बाद जो भी है उस पर आप पॉप स्टार्ट कर देना, ऑन मैचिंग पॉप, ऑन मैचिंग पॉप। तो यस, ये आपका डीसीएफएल है, ये आपका डिटर्मिनिस्टिक सीएफएल है, बिकॉज आई नो कि अप टू बिफोर हैश आई हैव टू पुश एंड आफ्टर हैश आई हैव टू परफॉर्म पॉप। हैश क्या है, हैश एक जस्ट अ सिंबल है। एंड थर्ड वन डब्ल्यू डब्ल्यू, देखो मैं अभी आपको बता देती हूँ, डब्ल्यू डब्ल्यू रिवर्स ये सी एफ एल है, एंड डब्ल्यू डब्ल्यू ए बी बी, ए बी बी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप स्टैक में पुश करोगे तो ए बी बी, पॉप करोगे तो ए पर आपको मिलेगा बी, तो हमें ए पर ए का मैचिंग होना चाहिए ना, बी पर बी का मैचिंग, एंड बी पर एक बी का मैचिंग, बट यहाँ तो कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट्स वाई ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सी एस एल। डब्ल्यू डब्ल्यू एग्जाम्पल है सी एस एल का, ठीक है, सी एस एल याद रखिएगा, ये हमेशा यदि एग्जाम में आ जाता है तो विद इन सेकेंड आप इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। डब्ल्यू डब्ल्यू रिवर्स ये सी एफ एल का एग्जाम्पल है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए से डिजाइन होता है। डब्ल्यू हैश डब्ल्यू इस टाइप के क्वेश्चन तो खैर मैंने क्लास में भी करवाए हैं। ये डिटर्मिनिस्टिक सी एफ एल है, डिटर्मिनिस्टिक है तो ये सी एफ एल भी होगा, डीसीएफएल है तो सीएफएल भी होगा, एंड डब्ल्यू डब्ल्यू ये डीसीएसएल ये सीएसएल का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये सीएसएल का एग्जाम्पल है। नाउ सॉल्व दिस वन। यस, वेरी गुड, L3 कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। बी, ठीक है, देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो नाउ 0 पावर n पावर m, थोड़ी देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन किया था आपने ए और बी के साथ, तो यस इसको पुश करिए, इन दोनों पर पॉप करिए, ये सी एफ एल है। नाउ 1 2 इसको पुश करें, इस पर पॉप करें एंड स्किप ऑपरेशन, डू नथिंग, सिर्फ इन दो के बीच में कंपैरिजन बन रहा है ना, इन दो के बीच में, तो ये भी आपका सी एफ एल है। नाउ 1 2 1 and 2 comparison, so it is CSL, ये CSL है, only L3 is not CFL, very good, ठीक है। L3 L2 क्यों नहीं है भाई, L2 तो है, L2 है, ठीक है, इसमें L2 is not, only L3 होगा आंसर। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कल सॉल्व किया था ना ये वाला, ये भाई क्या कर रहे हो, हाँ। इसको कल किया था हमने।
सो इसका आंसर क्या था भाई? इट इज L1 and L3. L1 and L3. क्योंकि कल भी हमने देखा था n की अलग अलग वैल्यूज जब आपने पुट की थी, तो एम ए और बी के बीच में अलग रिलेशन बन रहा था। इसको मैं अभी क्रॉस वेरीफाई कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ, ठीक है? तब तक आप इसको सॉल्व करिए। गेट 2016, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ये कब का क्वेश्चन है? गेट 2015 सेट 3। चलिए, हाँ, तो यस, जो L3 है वो भी आपका CFL है। यहाँ क्या आंसर होगा? कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेज A पावर n, B पावर m, C पावर n प्लस m। पॉसिबल है क्या? डी, वो नीदर आर कॉन्टेक्स्ट फ्री। अच्छा, प्रतेश सर कह रहे हैं कि L1 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, L2 इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें, हियर वी हैव दिस कंपैरिजन इज पॉसिबल, है ना? ये कंपैरिजन पॉसिबल है क्योंकि देखो, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में आपने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसके पहले ए, है ना, इसके पहले दिस वन 0 पावर n प्लस m, ठीक है, 0 पावर n प्लस m, 1 पावर n, 0 पावर m। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में इन्होंने लिख दिया। इन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पर? यहाँ पर ये लिख रहे हैं a पावर n, b पावर n, मतलब a और b को पुश करिए और c पर दोनों को पॉप करिए। a और b मिलकर नंबर ऑफ a एंड नंबर ऑफ b का टोटल, नंबर ऑफ a एंड नंबर ऑफ b का जो टोटल होगा, नंबर ऑफ a एंड नंबर ऑफ b का जो टोटल होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होना चाहिए? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी। तो ए और बी को पुश करें, सी पर पॉप करें, कंपैरिजन पॉसिबल है, CFL होगा। बट यहाँ एक और दो, दो कंपैरिजन, टू कंपैरिजन आर रिक्वायर्ड, सो नॉट CFL, ये CFL नहीं है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को हमने कल भी सॉल्व किया था। तो फर्स्ट वन, यस, देखो, ए और बी को कंपेयर करना है, बी और ए को कंपेयर करना है। बट यहाँ ए और बी को पुश करेंगे, पहले ए के रिस्पेक्ट में बी पॉप करेंगे, ए के रिस्पेक्ट में बी पॉप करेंगे, एंड देन बी के रिस्पेक्ट में ए पॉप करेंगे। पॉसिबल है, CFL है। नाउ ए पावर एंड बी पावर एंड, अब कंपैरिजन कैसा हो रहा है? ए का ए से कंपैरिजन है, बट टॉप ऑफ द स्टैक में बी प्रेजेंट है। सो जब मैं ए रीड करूंगी, आई विल नॉट कंपेयर, आई कैन नॉट कंपेयर ए विद ए बिकॉज टॉप ऑफ द स्टैक में बी प्रेजेंट रहेगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट CFL, ये CFL नहीं है। थर्ड वन, a power m, b power n such that m is equal to twice of n plus 1,
तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यदि जैसे कल मैंने बताया था कि आई कैन टेक द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 2 एंड 3, वो अलग अलग है। अब हम क्या करें ना, यदि हम सिर्फ ये मान के चले कि जो नंबर ऑफ ए है, ठीक है, जैसे आपने नंबर ऑफ ए लिया, हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 2, ठीक है, तो नंबर ऑफ ए कितने बन जाएंगे, 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज 4 प्लस 1। तो 4 प्लस 1 ए के लिए नंबर ऑफ बी कितने होंगे, इट विल बी 2। तो अब आप पूछ रहे थे कंपैरिजन कैसे होगा, तो देखिए हमको करना क्या है, फॉर द 2a, है ना, हम सिंगल बी के लिए 2a पॉप करेंगे, सिंगल बी के लिए 2a पॉप करेंगे, एंड यदि लास्ट में सिंगल 1 बचा, सो यस ये हमारा जो जो स्ट्रिंग है इट विल एक्सेप्टेड इन दिस पीडीए, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। सिमिलरली एन का वैल्यू 3 पुट करके देख लीजिए। तो अब आपने करना क्या है, एन वैल्यू इज 3, तो एक नंबर ऑफ ए कितने बनेंगे, ट्वाइस ऑफ 3 प्लस 1, दैट इज 6 प्लस 1। तो स्ट्रिंग क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 इज हियर, ठीक है, एंड बी बी एंड बी 3b। नाउ करना क्या है, फॉर द सिंगल बी पॉप 2a, for the single b pop 2a, for the single b pop 2a, and if only one is left in the stack, matlab this string is accepted. So yes, I can solve this problem with the help of सिंगल स्टैक पीडीए, दैट्स वाई ये आपका क्या होगा, सीएफएल होगा। क्लियर है ना, कल ये रह गया था क्लियरेंस। सॉल्व दिस वन, गेट 2004 का क्वेश्चन है। बी देखें, सो ए पावर एम, बी पावर एन, सी पावर एम प्लस एन, ये तो क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री है बट नॉट रेगुलर, इट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर। ए और बी पुश करिए, सी पर दोनों को पॉप कर लीजिए, है ना, ये आ चुका है, ये यूजीसी नेट में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। Now GATE का ही क्वेश्चन है, द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द पीडीए इन विच द स्टैक इज लिमिटेड टू 10 आइटम्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अब देखो यहाँ फाइनाइट वैल्यू आ गई, यहाँ फाइनाइट वैल्यू है, इफ इट इज फाइनाइट देन व्हाट शुड बी द आंसर। रेगुलर, यस देखें,
तो push down automata but limited by 10 item whenever there will be the finite value ना, जैसे अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था a पावर n b पावर n c पावर n and if n is equal to 5 only, यदि ऐसा बोलते तो मतलब क्या था, 5a followed by 5b followed by 5c, so ये आपका उस केस में रेगुलर हो जाता, ये रेगुलर हो जाता। तो यहाँ पर भी ये फाइनाइट वैल्यू आ गई, मतलब ये रेगुलर है, ये क्या है, रेगुलर है। ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, रेगुलर। गेट 2005 का एक क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। क्या आंसर होगा, फॉल्स स्टेटमेंट, वेरी गुड ऑप्शन। सभी लोग सॉल्व करिए। ठीक है, आंसर क्या बनेगा, a पावर n b पावर n c m। ठीक है, CFL ओनली वन कंपैरिजन, यहाँ CFL ओनली वन कंपैरिजन, so intersection of CFL is not never be CFL, may or may not, so this is false। यूनियन CFL होगा, बोथ आर CFL, इंटरसेक्शन इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, यस। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नाउ सॉल्व दिस वन। अब देखो ये आप क्या आंसर करते हो इसको। हाँ जी, फाइनाइट है तो ये रेगुलर है, वेरी गुड। ठीक है, फाइनाइट है तो ये रेगुलर है, इट इज फाइनाइट, दैट्स व्हाई इट इज रेगुलर। सी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा हिंट देती हूँ। आइडेंटिफाई करिए कि एल क्या है ना, यहाँ पर एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन,
एन का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो मुझे दो अलग अलग लैंग्वेजेस, पहला लैंग्वेज यदि हम L1 अज्यूम करें, L1 सच दैट डी एस इज मॉड 5, ठीक है, मॉड 5 इज इक्वल टू 2 है। तो थिंक अबाउट, कैन आई डिजाइन द डीएफए फॉर दिस, क्या मैंने ऐसा कोई काम किया है? या L2 दैट इज डी एस मॉड 7 इट शुड नॉट बी इक्वल टू 4, इज इट पॉसिबल विद डीएफए? यदि पॉसिबल है तो ये रेगुलर है, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ रेगुलर विद रेगुलर रेगुलर होता है। इफ नॉट देन हम नेक्स्ट लेवल पर जाकर सोचेंगे। तो ये आंसर क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, ये आपका रेगुलर है। वाई रेगुलर? बिकॉज आपको पता है कि डीएस मॉड 5, ये आपने किया था ना, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था, 101 मॉड 5 कितनी स्टेट बनती है? नंबर ऑफ स्टेट क्या होती है? 5 होती है, एंड 2 विल बी द, मतलब 0, मॉड वैल्यू 0, मॉड वैल्यू 1, मॉड वैल्यू 2। तो Q0 हम अज्यूम करते थे Q1 Q2 विल बी द फाइनल स्टेट एंड टोटल नंबर ऑफ स्टेट विल बी 5। हाँ, तो ये डीएफए आपने डिजाइन किया हुआ है, याद करिए, है ना, ये डीएफए आपने डिजाइन किया हुआ है। सो यस, ये आपका डीएफए बन गया। सो यस, ये तो आपका रेगुलर है। और रेगुलर का इंटरसेक्शन मॉड 7 शुड नॉट बी इक्वल टू 4, मतलब 4 को छोड़ के बाकी सब आप रेगुलर, बाकी सबको आप फाइनल स्टेट बना दीजिए, है ना। नॉट इक्वल टू 4 को छोड़कर बाकी सभी आपके फाइनल स्टेट होगी। सो यस, इट इज ऑल्सो रेगुलर। तो ये क्या होगा? एल इज रेगुलर, एल इज रेगुलर। सॉल्व दिस क्वेश्चन, गेट 2007। हाँ जी, डीसीएफएल है। हाँ भाई, क्या करना है यहाँ पर? 0 पुश करो, 2 पर स्किप करो, 1 पर पॉप करो, है ना। सो इट इज नॉट डीसीएफएल बट सीएफएल, इट इज रिकर्सिव, इट इज अ सीएफएल, इट इज अ रेगुलर, ठीक है। तो इट इज रिकर्सिव क्यों हो गई? एंड इज अ डिटर्मिनिस्टिक सीएफएल। हाँ, ये डिटर्मिनिस्टिक सीएफएल है, ये तो हमने निकाल ही लिया। सिंस डीसीएफएल है तो ये सीएफएल भी होगी, सीएफएल है तो रिकर्सिव भी होगी। थोड़ा सा कंफ्यूज किया, है ना, गेट का क्वेश्चन है। तो यस, बी इज द आंसर। चलो, ये थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू? a power p is a prime, it is not accepted by Turing machine, it is regular not context free, it is context free but not regular, neither regular context free but accepted by Turing machine. अब आंसर क्या हो जाएगा, है ना? आर यू एबल टू सॉल्व?
अभी ठीक है मैम, क्लियर हुई डाउट आपके शालिनी मैम, है ना? तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द लैंग्वेज। ए पावर पी थोड़ी देर पहले बताया था, ये रेगुलर नहीं है। वाई नॉट रेगुलर? बिकॉज आई कैन नॉट चेक ना पी इज प्राइम नंबर और नॉट। सिमिलरली ये सीएफएल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सीएफएल में आप कंपैरिजन कर सकते हो बट यू कैन नॉट डू द कैलकुलेशन। और प्राइम के लिए मुझे फाइंड आउट करना होगा कि कितने नंबर ऑफ ए को रीड किया है और क्या ये एक प्राइम नंबर है, क्या 2 प्राइम नंबर है, क्या 4 प्राइम नंबर है। वी हैव टू वेरीफाई, वी हैव टू डू दैट कैलकुलेशन। तो सीएफएल से भी पॉसिबल नहीं है। सो फॉर एवरी एल्गोरिथम, यस, पी इज अ प्राइम नंबर। इसके लिए मेरे पास एल्गोरिथम है। आप लोग भी अपने कॉलेजेस में कुछ प्रोग्राम लिखवाते होगे। इन दैट प्रोग्राम यदि हम कोई इनपुट देते हैं तो वो हमको बताता है कि whether the given number is a prime number or not. तो since we have algorithm, so we can also design the Turing machine for it. हम इसके लिए ट्यूरिंग मशीन जरूर डिजाइन कर सकते हैं। So that's why it is neither regular nor context free but accepted by Turing machine for any problem। ठीक है, for any problem if you have algorithm, यदि आपके पास algorithm है, then you can design Turing machine for that. That is called the Church-Turing thesis. इसको Church-Turing thesis भी बोलते हैं। ठीक है, now solve this one। गेट 2008 का क्वेश्चन है। L1 गिवन है, L2 गिवन है, ठीक है, एंड आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या आंसर बनेगा? इट इज बी, वेरी गुड। ठीक है, इट इज ऑप्शन बी। सो फर्स्ट वन इज सी एफ एल, है ना? फर्स्ट वन इज सी एफ एल, सेकेंड वन इज ए और आई, ए और बी कंपैरिजन पॉसिबल है। सी पर स्किप, ए और बी कंपैरिजन पॉसिबल है बिकॉज फॉर 2b आई विल पॉप 1a, फॉर 2b दिस टाइम, फॉर 2b आई विल पॉप 1a, so this comparison is possible, that's why both are CFL, है ना? both are CFL, so obviously statement 1 is false। now L1 intersection L2 is 5, yes, बिकॉज देखो यहाँ कंडीशन बोला गया a पावर i b पावर j and c पावर k is also there, है ना? k should be greater than equal to 1, there must be at least one c should be there in any string। आप कोई भी स्ट्रिंग जनरेट करोगे तो वहां पर एटलीस्ट वन सी विल बी देयर। बट जब आप यहाँ स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं, सो यू हैव ओनली ए एंड बी, सो ऑब्वियसली जब आप इनका इंटरसेक्शन करोगे दैट विल बी 5, सो ये ट्रू है। नाउ L1 इज नॉन रेगुलर, यस L1 CFL है, रेगुलर नहीं है। यूनियन ऑफ दीज टू CFL होगा। There is 4 state PDA that accept L1 but there is no DPDA that accept L2। देखो भाई, L2 के लिए भी DPDA, deterministic PDA possible है। A, suppose the value of I is 2,
तो वैल्यू ऑफ j क्या बनेगा, इट विल बी 4. फॉर a टू b 4, व्हाट आई विल डू, a को पुश करूंगी और 4b पर व्हेन आई विल रीड 2b आई विल पॉप 1a, व्हेन आई विल रीड 2b आई विल पॉप 1a. सो यस, ये पॉसिबल है, ये डिटर्मिनिस्टिक CFL है, बिकॉज आई नो कब तक पुश करना है, कब पॉप करना है, कब तक पुश करना है एंड कब पॉप करना है. सॉल्व दिस. गेट CSE 2009 का क्वेश्चन है. Let L1 intersection L2 where L1 and L2 are the language are defined below. Solve this one. इस टाइप का क्वेश्चन आपने अभी यूजीसी नेट का सॉल्व किया था, 0 पावर एंड 1 पावर के टर्म्स में था, 2 एंड 1 पावर एंड 2 पावर n, है ना, याद करिए और आंसर कर दीजिए. यस, वेरी गुड. ठीक है, तो फर्स्ट वन CFL है. क्यों CFL है, इन दो को कंपेयर करो, स्किप एंड इन दो को कंपेयर करो. नाउ थर्ड वन, a पावर i b पावर j c पावर k, ऑल थ्री आर इंडिपेंडेंट. a है रेगुलर, the intersection of CFL with regular is also regular, is also CFL. So it is CFL but not regular, it is CFL but not regular, है ना. चलिए सॉल्व दिस क्वेश्चन. गेट 2010 से ये क्वेश्चन लिया गया था. चलिए इसको समझते हैं. ठीक है, विच वन इज नॉट रेगुलर मैम. अरे तो ऑल थ्री आर इंडिपेंडेंट ना, ऑल थ्री आर इंडिपेंडेंट. नंबर ऑफ आई, ठीक है, ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है आपका, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बी. ठीक है, ये एग्जैक्टली लैंग्वेज क्या है, नंबर ऑफ any number of a followed by, because I j k लिया है, so any number of a followed by any number of b followed by any number of c. ऑर्डरिंग है, रेगुलर है, फाइनाइट की तो बात ही नहीं हो रही है ना. ये क्लीन क्लोजर है, फाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट है, बट ऑल थ्री आर इंडिपेंडेंट. ए इज फॉलोड बाय बी इज फॉलोड बाय सी की बात की जा रही है ना. क्लीन क्लोजर क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. एप्सिलॉन इज ऑल्सो पॉसिबल, सो दैट्स व्हाई ये ऑर्डरिंग हो गई.
ना, जब इंडिपेंडेंट है तो ऑर्डरिंग है। सो यस, ये आपका क्या होगा, रेगुलर होगा। नाउ सी दिस क्वेश्चन, है ना, 2010 गेट का क्वेश्चन है। यहां आपसे बोला गया 0 पावर आई 1 पावर आई, क्या ये CFL है? अब इसको ध्यान से देखना, यहां इन्होंने बोला 0 शुड नॉट बी इक्वल टू जे, सॉरी आई शुड नॉट बी इक्वल टू जे। तो अब मैं क्या करूं, आई कैन रीराइट दिस प्रॉब्लम। मैं रीराइट कैसे कर सकती हूँ कि आई, दो कंडीशन होगी, या तो आई इज ग्रेटर देन जे होगा, और आई इज लेस देन जे होगा, बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू। सो यस, अगेन आई कैन डू दिस कंपैरिजन। ये कंपैरिजन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? देखो भाई, यदि ग्रेटर देन जे होगा तो व्हेन स्टैक पर आप ए पुश करोगे और बी पर जब आप पॉप करोगे, तो व्हेन आफ्टर पॉपिंग द एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू बी, जब आप बी पर पॉप कर रहे हो तो ऑब्वियसली एडिशनल ए विल बी देयर इन द स्टैक, सम एडिशनल ए विल बी देयर इन द स्टैक इफ बी इज कंप्लीटेड। तो मतलब नंबर ऑफ ए इज मोर देन नंबर ऑफ बी बन रहा है, नंबर ऑफ ए इज मोर देन नंबर ऑफ बी। दूसरा केस क्या हो सकता है और वाला, कि ए तो सभी पॉप हो गए बट स्टिल आई हैव बी इन द इनपुट टेक। तो यदि ये सिनेरियो है तभी भी आपका ये वैलिड है, कंपैरिजन पॉसिबल हो रहा है। तो आपने कहा ये CFL है, ये CFL है। सेकंड वाला तो ऑब्वियसली हमेशा से CFL रहा है। थर्ड वन, ये भी CFL है। अभी थोड़ी देर पहले इसका लॉजिक पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि भाई फॉर 0 पावर आई जे पावर 1 पावर जे, 1 पावर जे में आप जीरो को, है ना, 0 2 0 पर, सॉरी, इफ यू हैव 2 0 देन जे कितने हो जाएंगे, आई कितने हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ जे प्लस 1। सो सपोज 1 1, ठीक है, और एडिशनल 1 0 विल बी देयर। सो ऑन 2 0, ऑन सिंगल 1 हम 2 0 पॉप करेंगे, ऑन सिंगल 1 हम 2 0 पॉप करेंगे, एंड एडिशनल 1 बच रहा है, तो ये आपका CFL है ना। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन और था आपका ए पावर के ए और बी के टर्म्स में, है ना, थोड़ी देर पहले। तो ABCFL है। लास्ट वन अगेन इस तरीके से चेंज कर लो, आई इज ग्रेटर देन 2J और आई इज लेस देन 2J। PDA कैसे डिजाइन होगा भाई, फॉर एवरी वन आई, है ना, हर एक सिंगल आई के लिए आप फॉर 2J सिंगल आई, सॉरी जे और आई नहीं, 0 और 1 के टर्म्स में, फॉर सिंगल, देखिए 0 0 1 1 1 ये स्ट्रिंग होगी। सो फॉर 2 1 पॉप 1 0, फॉर 2 1 पॉप 2 1 0। इफ एडिशनल 0 विल बी देयर इन द स्टैक, मतलब ये ग्रेटर देन है, अदरवाइज ये लेस देन है ना। यहाँ 1 1 बचा बट आपका 0 स्टैक में खत्म हो गया। तो अगेन आप ये कंपैरिजन कर सकते हो। तो अब आप समरी ये समझिए, ठीक है, समरी क्या कहती है भाई, कि यदि नॉट इक्वल टू लिखा है तो इसको मैं लिख सकती हूँ आई इज ग्रेटर देन जे और जे इज आई इज लेस देन जे, एंड इस कंपैरिजन को हम कर सकते हैं। बाकी इक्वल टू तो इसका कॉन्सेप्ट भी बता दिया। एडिशनल 1 यदि आपका बच रहा है तो वो आप फाइंड आउट कर लोगे। सो ऑल 3 आर कॉन्टेक्स्ट फ्री, ऑल 4 आर कॉन्टेक्स्ट फ्री। एनी डाउट? देखिए, solve this one. 0 P 1 Q P should P and Q should belong to the natural number 0 P Q and P is equal to Q P Q R and P and Q is equal to R. So
ठीक है, तो फॉल्स स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है, नॉट ट्रू फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल भी गलती ना करें यदि आप ट्रू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेटमेंट, है ना। 0 पावर p q पावर 1, ठीक है, p q बिलोंग्स टू n, रेगुलर है ना, बोथ आर इंडिपेंडेंट, p and q इंडिपेंडेंट। सेकेंड वन p इज इक्वल टू q, कॉन्टेक्स्ट फ्री है। एंड थर्ड वन इज CSL, है ना, थर्ड वन आपका CSL है, बिकॉज 1 and 2 comparison is required, p is equal to q and q is equal to r. So PDA automata can be used to recognize L1 and L2. Yes, PDA, because regular is a subset of CSL. That's why, ठीक है, PDA can recognize L2 and L1. This is true statement. L1 regular है, L1 regular. All three are context free. No. Turing machine can be used to recognize all. Yes, Turing machine is the most powerful machine that can recognize recursively enumerable, recursive, CSL, CFL, DCFL and regular. ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। एनी डाउट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रामर नाउ? एनी डाउट? हाँ जी, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लोजर प्रॉपर्टी। आई होप आपने यदि सेशन चेक किया होगा तो ऑलरेडी आप फैमिलियर हो, थोड़ी देर पहले भी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी का डिस्कशन किया था। तो इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस चार्ट, ठीक है, जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है उस पर ही बेस्ड आपका सारा प्रॉब्लम है ना। तो बस इसको याद रखिएगा, दैट्स इट। रेगुलर इज क्लोज अंडर ऑल द ऑपरेशन, DCFL इज नॉट क्लोज अंडर द complementation, epsilon complement, it is closed under the complementation, inverse homomorphism and intersection with regular. CFL is not closed with complement and intersection. CSL is not closed under the homomorphism. Recursive is not closed under homomorphism and substitution, and recursively enumerable is not closed under the complement. That's it, बस इतनी ही कहानी है, बाकी ये एक्सप्लेन किया आपको। नाउ सी पहला क्वेश्चन, suppose L1 is regular, L2 is context free, which one of the following not necessarily context free? GATE CSE 2021, GATE CSE 2021, solve this question।
क्या आंसर होगा? L1 रेगुलर है, L1 रेगुलर है, ठीक है, एंड L2 CFL है। तो इंटरसेक्शन ऑफ रेगुलर विद CFL, CFL होता है, ये ट्रू है। नाउ कॉन्केटिनेशन ऑफ रेगुलर विद CFL भी CFL होगा, ठीक है। नाउ रेगुलर डिफरेंस, थोड़ी देर पहले पढ़ाया, रेगुलर डिफरेंस CFL रीराइट करोगे, रेगुलर इंटरसेक्शन विद कॉम्प्लीमेंट ऑफ CFL, सो ये क्या हो जाएगा, इट मे और मे नॉट बी CFL, सो दैट्स वाई ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, रेगुलर यूनियन विद CFL, CFL होता है, ठीक है। तो गॉट इट, अभी थोड़ी ये गलत लगा है आंसर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये देखो ऑप्शन सी फॉल्स है। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये तो अभी किया है ना, हाँ ये तो किया अभी लास्ट उसमें, ये भी करके आ रहे हैं हम, ये भी कर लिया आपने, आइडेंट, हाँ इसको सॉल्व करिए, जून 2020। हाँ, इंटर CFL इज नॉट क्लोज अंडर द इंटरसेक्शन, बट जब आप CFL और CFL का इंटरसेक्शन करते हो मैम, जब आप CFL और CFL का ही इंटरसेक्शन करोगे, देन यू विल से इट इज नॉट क्लोज अंडर द, इट मे और मे नॉट बी CFL, बट जब आप रेगुलर का इंटरसेक्शन विद CFL करोगे तो आपको CFL मिलेगा, तब आपको CFL मिलेगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन रेगुलर और CFL के बीच था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यूनियन ऑफ CFL, CFL होता है, इंटरसेक्शन फॉल्स होगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री फॉल्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, ये भी फॉल्स होगा, ठीक है। एंड द लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, इट कैन ऑलवेज बी एक्सेप्टेड बाय DPDA, नहीं भाई देखिए, यदि कॉन्टेक्स्ट फ्री है, यदि DCFL है, डिटर्मिनिस्टिक CFL है, तो DPDA डेफिनेटली वर्क करेगा, बट यदि CFL है तो इट मे बी, इट इज DPDA और PDA इज रिक्वायर्ड, है ना, NPDA इज रिक्वायर्ड, तो आंसर क्या होगा, ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये तो मैच द टेबल आपने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, सॉल्व दिस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बट इसको थोड़ा देखो बताती हूँ क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया 2020 में, ठीक है, ये अक्टूबर 2020 में पूछा गया, दिस वन, हाँ जून 2020 में, ठीक है। और यही क्वेश्चन पूछा गया था, यदि आप प्रीवियस इसको देखें, है ना, तो यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को देखिए, और फिर यही क्वेश्चन पहले पूछा गया था जून में, तो ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 सिर्फ क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया है ना, बस कॉलम को चेंज करके और न्यूमेरिकल बना दिया, बाकी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। L3 क्या है, रिकर्सिव है, रिकर्सिव का कॉम्प्लीमेंट रिकर्सिव होगा, इसका यूनियन विद L4 रिकर्सिवली इनुमरेबल, क्या होगा, रिकर्सिवली इनुमरेबल। L2 क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ L2 may or may not be CFL, so union with recursive will give you recursive, and L1 क्या है, रेगुलर, रेगुलर का इंटरसेक्शन, रेगुलर का क्लीन क्लोजर रेगुलर होता है, इंटरसेक्शन विद CFL आपको CFL देगा, तो यस ये ऑप्शन 1 है,
है ना, वही क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज करके। ये तो आपको बनने ही लगे ये सारे सवाल। अब मैं, अच्छा देखो भाई यहाँ पर है ना, ये आपने सॉल्व कर ही लिए CFL आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रामर में। हाँ, सॉल्व दिस वन। ऑप्शन डी देखें तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, L1 का कॉम्प्लीमेंट, L1 क्या बोला, कॉन्टेक्स्ट फ्री, कॉन्टेक्स्ट फ्री का कॉम्प्लीमेंट कॉन्टेक्स्ट फ्री होता है क्या, नहीं, मे और मे नॉट, फॉल्स है। नाउ L1 यूनियन L2 मतलब CFL का यूनियन विद CFL डेफिनेटली CFL होगा, बट CFL का कॉम्प्लीमेंट मे और मे नॉट भी, तो ये अगेन कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, फॉल्स हो गया। इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, भाई इट इज फॉल्स। फिर CFL डिफरेंस विद रेगुलर, हाँ, CFL डिफरेंस को आप लिख सकते हो CFL इंटरसेक्शन विद कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेगुलर। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेगुलर इज ऑल्सो रेगुलर, सो इट विल बी CFL इंटरसेक्शन विद रेगुलर इज रेगुलर, सो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, है ना, वेरी गुड। ये जो क्वेश्चन है ये ड्रॉप कर दिया गया था, ठीक है। देखिए रीजन क्या था, A पावर n B पावर n CFL है, यस, ठीक है। तो L पावर 2 मतलब इसका CFL का पावर या वही क्लीन क्लोजर वाला रूल, ये CFL होगा, हाँ ये तो CFL होगा। L पावर के ये भी CFL होगा, बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ L, it is not CFL ना, it may or may not, so that's why ये ऑप्शन 3 था, एंड अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने ऑप्शन 4 को सही माना था, तो दैट्स व्हाई इट इज एलिमिनेटेड, ओनली S1 एंड S2 इज ट्रू, ओनली S1 एंड S2 इज ट्रू, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए इसके लिए आपको जो चार्ट है वो याद होना बहुत जरूरी है ना। The class of language that is closed under union and complement both has to be closed under the intersection, है ना। तो यहाँ पर यदि आप देखें, थोड़ा एनालिसिस करें, द, सॉरी ग्राफ को ही ओपन करना पड़ेगा।
any language which is closed under union and complementation, union and complementation, union and complementation is also closed under the intersection. Yes, तो ऐसी रेगुलर है, CSL है, recursive है, which is closed under the union and complementation. Union and complementation is also closed under the intersection. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या होगा, ट्रू होगा. बट द सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एनी लैंग्वेज, ठीक है, दैट इज क्लोज्ड अंडर यूनियन एंड इंटरसेक्शन इज ऑल्सो क्लोज्ड अंडर द कॉम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, तो क्या ये भी ट्रू है, तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन पर क्लोज होगा तो कॉम्प्लीमेंटेशन पर भी क्लोज होगा. सो हियर वी हैव any language which is closed under the union and intersection, it is also closed under the complementation. Regular के लिए true है. It is closed under the union, no, union and intersection also closed under complementation. Closed under union and intersection also closed under the complementation. But recursive language is closed under, recursively enumerable language is closed under union and intersection, but not closed under the complementation. So that's why this second statement is false. फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू था, बट सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या होगा, फॉल्स होगा. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या होगा, फॉल्स होगा. ओके, चलिए, तो 1 is true, 2 is false. Now solve this question. The family of context sensitive language. Yes, it is closed under both the property. ठीक है, it is closed under union and reversal. Very good. ठीक है, now next question, ये 2013. हाँ, context sensitive is closed under intersection, concatenation, substitution and inverse homomorphism. True है, but context sensitive is not closed under the homomorphism, है ना, it is not closed under the homomorphism. So answer क्या होगा, only S1 is correct. Now solve this one. Which of the following is true? Complement of recursive language recursive होता है. Complement of recursively enumerable is also recursively enumerable. Recursive language is either recursive or recursively enumerable. The complement of context free is context free. True बताना है. Yes, correct answer क्या है, ठीक है, what is the correct answer? Recursive language is closed under the complementation. याद रखिए, सिर्फ
CFL and recursively enumerable is not closed under the complementation. That's a complement of recursive is recursive, true है, but second is false because recursively enumerable is not closed under the complementation. CFL is not closed under the complementation. रिकर्सिव लैंग्वेज का जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे आपको रिकर्सिव ही मिलेगा. इट इज नॉट अबाउट एंड और ठीक है, ये रिकर्सिव ही होगा. तो ऑप्शन 1 इज ट्रू. ठीक है. नाउ एल बी अ कॉन्टेक्स्ट फ्री, एम इज अ रेगुलर. तो इंटरसेक्शन ऑफ एल एंड एम क्या होगा? 2006. इट इज ऑलवेज कॉन्टेक्स्ट फ्री. इट इज ऑलवेज कॉन्टेक्स्ट फ्री है ना. ऑप्शन डी. Solve this one. GATE 2016. ठीक है, तो ये आंसर आप क्या बोल रहे हो? ऑप्शन बी. देखिए पहला L3, ये वही क्वेश्चन है. ये वही क्वेश्चन है जो 2 बार हम सॉल्व कर चुके हैं. L3 रिकर्सिव, कॉम्प्लीमेंट ऑफ L3 will be recursive. Union with recursively enumerable will be recursively enumerable. True. Now L2 CFL. CFL का complement may or may not be CFL. Union with recursive will be recursive. याद आ रहा है? मैच द टेबल 2 टाइम कर चुके हो आप. L1 clean closure intersection with L2. सिर्फ पैटर्न चेंज होता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है. एग्जाम में कभी भी पैटर्न देखकर डरिएगा मत. एग्जाम में यदि पेपर चेंज मिलेगा तो डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है. L1 रेगुलर का क्लीन क्लोजर, रेगुलर इंटरसेक्शन विद CFL इज CFL इज CFL. नाउ L1 यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ L2. ठीक है. सो नाउ यहां पर देखिए L1 है रेगुलर यूनियन विद इंटरसेक्शन ऑफ L2. L2 है CFL. इट इज मे और मे नॉट. तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी. 1 2 3 इज ट्रू, डी इज फॉल्स. ठीक है, 4 इज फॉल्स. तो यस, ये आपका क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रामर. ठीक है. गेट 2017 में फिर क्वेश्चन बनाया इन्होंने. L1 and L2 are regular context free. R is regular. Then which of the following is true? तो L1 यूनियन L2 कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा. यस, ये अभी सॉल्व करके आए, बस थोड़ा सा पैटर्न अलग था. L1 कॉम्प्लीमेंट कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा. नो. L1 माइनस आर कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा क्या? यस. CFL डिफरेंस विद रेगुलर तो कॉन्टेक्स्ट फ्री होता है, बट CF इंटरसेक्शन ऑफ CFL विद CFL इट इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री. सो आंसर क्या है? 1 and 3. 1 and 3 आर करेक्ट. ठीक है, 1 and 3 आपके करेक्ट स्टेटमेंट है. सॉल्व दिस क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन.
So tomorrow we will complete decidability and please complete compiler design by Monday. वैसे तो मैंने sufficient time दिया है ना? So we have Friday, Saturday, Sunday already. We have assigned this. So from Monday we will start theory of computation. Previous year question from 2023 to 2018 है ना? Already gate questions हम solve कर ही रहे हैं. तो अब आप कंपाइलर तैयार कर लीजिए. So the intersection which of the following is false? Intersection of CFL with regular is CFL, true है. Intersection of regular is regular, true है. Intersection of two context free is context free, false होगा. Intersection of CFL and complement of regular is context free. Intersection of CFL and complement of regular है ना, ये क्या होगा? CFL intersection regular, that is CFL, true है. Next one, intersection of regular and complement of regular. Intersection of regular and complement of regular भी regular होगा, yes. तो C is the false option. C is the false statement. ठीक है. So this is today's session. Any doubt and query? Done? ओके चलिए तो एंड करती हूँ सेशन. थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम. गुड नाइट, टेक केयर.